Good morning student, welcome back in this class, and this is the class 9 subject social science, and this is the chapter 4th of civics, and the topic name is electoral politics, and this is the lecture 6th. Student, firstly we will recall previous lecture, and in previous lecture we have already discussed about the election procedure, and by this chapter we will learn about election system of the country. Election procedure we should follow. Firstly, we will divide the country into different constituency, and there are 543 constituency for Lok Sabha election. And then second step is reserve constituency. Some seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribes and women also. And voter list prepared by election commission after every 5 years. And nomination of candidate means those person who contest election, they fill a form and they deposit a security and provide information, and electoral campaign, and last polling and counting of votes, and result declared by election commission. So student, electoral politics means election procedure, importance of election, merits and demerit of election system in the country. So student, let's start our lecture, and today we will cover some topic. First is democratic elections. Student, you know we live in a democratic country, and in a democratic election based on free and fair manner, and it is based on regular interval also. So we fulfill some basic necessity of democratic election. Firstly, election are held by independent election commission. In a democratic country, election are held by independent election commission. And second condition, popular participation. Democratic election depends on active participation of the citizen. And third, acceptance of election outcome. Means democracy election, it's main based on election outcome, means all people agree to the result of election. So these are three important things to divide the two. All three things depend on the manner of the election, if the election are democratic or non-democratic. So student, today we will discuss about democratic election. Yesterday we have discussed independent election commission. And second point is challenges to free and fair election. Means in a democratic election we face some challenges to free and fair election, because many people use dirty tricks to win the election. Many big parties and many rich member and many powerful member to use dirty tricks to win the election. So in a democratic election, many challenges faces by people to conduct for free and fair election. And student, we saw some question. That question I have assigned in previous lecture. Okay, so student, let's start. Firstly, we will discuss about democratic election, and first is independent election commission. Student, firstly, you know yesterday we have discussed about the election commission. Election means the chief election commissioner appointed by the president, and election commission is independent like judiciary. And total member in election commission, there are 3 members in election commission. The main head of the election commission means chief election commissioner name. Currently chief election commissioner name is सुनील अरोड़ा जी हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एट करंट. और उसके अलावा जो टोटल आपके इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक जो चीफ होते हैं और 2 उनके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं. मेंबर 2 हैं जो करंटली जो मेंबर हैं, उनके नाम है अशोक लवासा एंड सेकंड इज़ सुशील चंद्र. तो 3 मेंबर्स मिलके ये क्या करते हैं, पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करते हैं. और जो इनकी
जो आपके मेन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंट करते हैं उसको, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इनको अपॉइंट कर दिया जाता तो इनको रिमूव करना या उनकी पावर से हटाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अब पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, फर्स्टली EC take decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result. Means EC control every aspect of the election, and it start from announcement of election and it ended from declaration of result. यानी कि अनाउंसमेंट, इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने से लेके डिक्लेरेशन और रिजल्ट होने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है। एंड इट इम्प्लीमेंट अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉलेट्स इट यूज कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल एंड रेगुलेशन। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी कैंडिडेट or they do not use code of conduct, they do not follow the code of conduct, then punishes and party that violates it. अगर कोई इनकी बात को फॉलो नहीं करता, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, उस पार्टी को क्या किया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, इसको क्या पनिश भी दिया जाता है। तो ये पूरी इलेक्शन के टाइम पूरा जो कंट्रोल होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन का। And during the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power, to enhance its chances to win election, or to transfer some government officials. During the election period, all control by election commission, and they give some guidelines to the government to prevent use and misuse of government official, government building, government aircraft also, and it has power to transfer some government official in any place. अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई लीडर है या कोई भी पर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा, तो उसको क्या है, उसको क्या है, इसका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और अगर कोई इसको यूज़ करता है तो उसको उनकी पावर से भी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि मेन जो सारा कंट्रोल होता है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, और इसमें गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट। ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगती है तो वो किसके अंडर रह के काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर रह के काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंडर। और इलेक्शन कमीशन जैसे उनको रूल्स एंड रेगुलेशन उनको प्रोवाइड करता है, उनको वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। तो जो पूरी कंट्री में जो इलेक्शन के दौरान जो पूरा कंट्रोल होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन। और मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनका नाम है सुनील अरोड़ा है, और उनके 2 मेंबर हैं, उनका नाम है अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र। ये पूरे हैं, वो पूरी कंट्री में इलेक्शन को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और कोई भी गाइडलाइंस होती है सबसे ज़्यादा पहले वही क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई इस बात को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या है, पनिशमेंट भी दी जाती है। तो पूरी कंट्री में सबसे जो इलेक्शन के टाइम में सबसे जो कंट्रोल होता है इलेक्शन कमीशन का होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इट इज़ इंडिपेंडेंट लाइक जुडिशरी, कोई भी उसके वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, सो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेटिक तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब सभी लोग उसमें क्या होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, देखिए। Popular participation in election is usually measured by voter turnout. Voter turnout means it indicates the percent of eligible voter who actually cast their vote. Means how many people cast their vote. कि कितने % लोग हैं जो अपनी वोट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी वोट को सही लोगों को क्या करते देते हैं। और तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, टर्न आउट का मतलब है कि कितने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितने पर्सन है अपनी वोट को यूज़ करते हैं। ओवर द लास्ट, हमने इसमें सर्वे किया है, इसमें ओवर द लास्ट 50 ईयर द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका है डिक्लाइन।
और सर्वे में पता चला है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो ये है जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम है, यानी वहाँ पे जो वोट है वो उसका यूज़ काफ़ी कम किया जाता है। इन इंडिया द टर्न आउट एंड आइदर रिमेन स्टेबल, या तो इंडिया में क्या है 50 सालों में या तो टर्न आउट क्या रही है, स्टेबल रही है, या क्या रही है एक्चुअली गॉन अप, और ज़्यादा लोगों ने अपने वोट को क्या किया, यूज़ किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो ये जो है ये किसी भी कंट्री की डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी पॉसिबल हो पाता है जब सभी लोग इसमें क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, in India the poor, illiterate and underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section। और हमारी कंट्री में मोस्टली है जो कि पुअर हैं, इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड पर्सन, अंडर प्रिविलेज पर्सन हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो ज़्यादा वोट करते हैं, यानी कि वो अपने यूज़ देयर वोटिंग राइट एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, यानी कि रिच और प्रिविलेज सेक्शन से ज़्यादा जो वोटिंग का जो यूज़ करते हैं वो कौन है, पुअर और इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज। एंड दिस इज़ कंट्रास्ट सो टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पुअर पीपल, अफ्रीकन एंड हिस्पैनिक वोट मच लेस। हिस्पैनिक वहाँ पे अमेरिका में एक कास्ट है, उसका नाम है हिस्पैनिक, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पुअर पीपल हैं, हिस्पैनिक हैं और अफ्रीकन्स हैं, वोट मच लेस दैन द रिच पुअर। वहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं वो अपनी वोट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड, दे आर वेरी पुअर, सो दे आर नॉट यूज़ देयर वोटिंग राइट्स। बट इंडिया में क्या है, जितने भी पुअर हैं, इलिटरेट हैं या क्या अंडर प्रिविलेज हैं, वो क्या करते हैं, अपनी वोटिंग राइट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस पाया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में। थर्ड, common people in India attached a lot of importance of election. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policy and favorable to them. हमारी कंट्री में जो कॉमन पीपल है यानी ऑर्डनरी पीपल है, अटैच है, दे आर टोटली इन्वॉल्व इन इलेक्शन सिस्टम एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। कॉमन पीपल, आम लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और उनको लगता है कि वो अपने वोटों के द्वारा ही, अपने वोट के द्वारा ही क्या कर पॉलिटिकल पार्टी या किसी कैंडिडेट पे क्या कर सकते, प्रेशराइज़ कर सकते हैं किसी पॉलिसी को बनाने के लिए, किसी भी कुछ डिसीज़न लेने में वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, मोस्टली इन इंडिया में। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे जो हैं रैलीज़ में जाते हैं, पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या करती हैं, अपनी मीटिंग करती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, गैदरिंग होती है। तो जो कॉमन पीपल है वो बहुत ज़्यादा इलेक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वो सोचते हैं कि सपोर्ट करने से, ज़्यादा इन्वॉल्व होने से उनकी फेवर में कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जिससे उनका भी क्या होगा, उनका भी जो लाइफ है वो काफ़ी बेटर होगी, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके लिए क्या होगी, फेवरेबल होगी। Next, the interest of voters in election-related activity has been increasing over the years, and during the 2004 election, more than 1/3 voters took part in campaign-related activity. अब जो इंटरेस्ट है वोटर्स का वो लगातार क्या होता है, इम्प्रूव होता जा रहा है ओवर द ईयर। पहले इंटरेस्ट काफ़ी कम था, अब क्या इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, एंड दे टुक पार्टिसिपेट इन इलेक्शन सिस्टम ऑल्सो। एंड ड्यूरिंग द 2004 से मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी, और 1/3 जो वोटर हैं वो क्या करते हैं, कैंपेन में, यानी कि पॉलिटिक्स के साथ, उनके साथ मीटिंग होल्ड करने में, उनके साथ रैलीज़ में जाने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन ऑफ, और इसमें क्या है, हाफ से ज़्यादा, यानी कि जो लोग हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या मानते हैं, हिस्सा मानते हैं, और किसी ना किसी वो पार्टी से क्या होते हैं, उनका जुड़ा होते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड हमारी कंट्री में मोस्टली जो है 7 वोटर, यानी कि टोटल 7 वोटर में से 1 वोटर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, मेंबर होता है। यानी कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है इंडिया में मोस्टली, और वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में सपोर्ट करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो उनको क्या होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। तो स्टूडेंट, दीज आर सम पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और इन्हीं पॉपुलर पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सक्सेसफुल इसी पे क्या होती है,
इसी पे डिपेंड होती है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब लास्ट जो स्टेप है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम मीन्स रिजल्ट एंड वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इट्स आउटकम इटसेल्फ। फाइनल जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्शन के आउटकम पे, कि सभी लोग उसको क्या करते हैं, उसको एग्री होते हैं, फेवरेबल मानते हैं, उस पर एग्री होते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब क्या है, वो डिपेंड्स ऑन इन डेमोक्रेटिक। एंड द फर्स्ट, द रूलिंग पार्टी routinely lose election in both at the national and state level। हमारी कंट्री में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी वो हमेशा क्या हो, विन होए, या कोई अपोजिशन पार्टी कभी वो जीत ही ना पाए, ऐसा नहीं है। रूलिंग पार्टी routinely लूज इलेक्शन इन बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी कि हमारी कंट्री में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है और वो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या हो सकती है, नेशनल और स्टेट लेवल असेंबली में भी क्या हो सकती है, इलेक्शन हार जाती है। इन द US एंड इंक्यूबमेंट मीन्स प्रेजेंटली रूलिंग पार्टी और सीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंट रेयरली लॉसेज इन इलेक्शन। लेकिन US में कंडीशन क्या होती है, अपोजिट होती है। वहाँ पे जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है वो क्या होता है, रेयरली ही हारता है, लेकिन वो रेयरली हारता है, हमेशा वो क्या होता है, जीतता है। जिसको रिप्रेजेंटेटिव करके बनाया जाता है, यानी जिन्होंने लोगों ने खुद अपने में से उसको रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या इलेक्शन बहुत ही कम हारता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, मोस्टली जो MPs MLAs हैं वो कई बार इलेक्शन क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी बहुत ज़्यादा रिच है या बहुत ज़्यादा पावरफुल है वही पार्टी हमेशा इलेक्शन विन करे। तो हमारी कंट्री में क्या है, जो भी रिजल्ट आता है उसको सभी लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। And candidate who are known to have spent a lot of money or buying votes and those who with non-criminal connection often lose election। जो भी कैंडिडेट who are belongs to criminals family and criminal cases and they spent a lot of money for buying votes। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं they use dirty tricks to win the election, they buying votes। वो भी काफ़ी बार क्या होते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। ये कि भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पावर के ऊपर डिपेंड रहकर या क्या है अपने पैसे के बल पे वो क्या है इलेक्शन जीत जाएं। तो हमारी कंट्री में जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी विन कर सकती है, कोई भी पार्टी उसमें हार सकती है। एंड द इलेक्टोरल आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। जो भी आउटकम होते हैं वो मोस्टली क्या किए जाते हैं, सभी लोगों के द्वारा ही क्या एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे वो पार्टी डिफीटेड पार्टी यानी जो पार्टी हार गई है वो भी उसको रिजल्ट को क्या करते हैं, स्वीकार करती है। तो कोई उसके अगेंस्ट नहीं होता, सभी लोग उसको क्या करते हैं, एग्री होते हैं। तो सभी जब एग्री हो जाते हैं, इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्शन है वो किस पे बेस्ड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड हैं और सभी लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ओके, एंड द पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड आउटकम ऑफ इलेक्शन डिपेंड्स ऑन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए। नेक्स्ट, challenges to free and fair election. अब student, you know, election are held after every 5 years and many new candidate contest election and they use dirty tricks to win the election. But some challenges in election, because many people use fraud and malpractice to win the election, and many challenges faces by many leaders to conduct free and fair election. तो काफ़ी सारे जो चैलेंजेस होते हैं हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारे जो पर्सन है वो रिच भी हैं, काफ़ी सारे पर्सन पुअर हैं, तो उनको क्या है अपनी पार्टी को विन कराने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना, उनको फेस करना पड़ता है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कैंडिडेट एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू enjoy big and unfair advantages over smaller parties and independent.
you know, many big parties, many rich member contest election and they spend lots of money to win the election. काफ़ी सारी बिग पार्टीज़ हैं, वो क्या करती है, इलेक्शन को विन करने के लिए काफ़ी सारा पैसा क्या करती है, वेस्ट करती हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि वो इलेक्शन को विन करेंगे या नहीं करेंगे. लेकिन क्या होती हैं, दे प्रेशराइज ऑल वोटर्स एंड दे प्रेशराइज स्मॉल पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो. लेकिन वो क्या है, अपनी पावरफुल की वजह से, अपने पैसे की वजह से वो क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को क्या करते हैं, प्रेशराइज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. इसी वजह से काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है, जो एजुकेटेड कैंडिडेट है या पावरफुल कैंडिडेट है, वो भी क्या करता है, कई बार इलेक्शन से अपना नाम भी क्या करता है, विड्रॉ कर लेते हैं. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारे पावरफुल या रिच मेंबर हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं अपनी पार्टी को विन कराने के लिए. तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है इलेक्शन में. सेकेंड, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर टिकट फॉर मेजर पार्टी. अभी मैंने बताया ना कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, दोज बिलोंग फ्रॉम क्रिमिनल connection, they have criminal connection and they use dirty tricks to win the election. they have secure a ticket from major party. वो क्या करते हैं, अपने मसल्स पावर यानी कि क्रिमिनल कनेक्शन की वजह से क्या करते हैं, मेजर पार्टी से टिकट क्या कर देते हैं, वो अपनी कंफर्म कर देते हैं. यानी कई बार क्या होता है, प्रेशराइज होके कई बार क्या है, गलत लोगों को भी क्या है, इसमें क्या है, टिकट दे जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्शन में क्या होते हैं, काफ़ी पावरफुल लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं या अदर जो कैंडिडेट हैं, उनको क्या इलेक्शन कंटेस्ट करने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है. And some families tend to dominate political party. Ticket are distributed to relative from these families. आपको पता है कि कंट्री में कुछ मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं जिनमें क्या होता है, आगे अपनी ही पार्टी को क्या दिया जाता है, दे प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट टिकट फ्रॉम देयर रिलेटिव एंड अदर फैमिली मेम्बर ऑल्सो. सो पूरी कंट्री में कुछ ही फैमिली मेम्बर का क्या रहता है, वो उनका प्रेशर रहता है, वो डोमिनेट करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, और एक ही फैमिली को बार बार टिकट देने की वजह से उनकी जो पावर है वो क्या होती है, बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये कंट्री में नए कैंडिडेट को आने में, नई फैमिली को अपने इलेक्शन को विन करने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना, फेस करना पड़ता है. And the smaller party and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger party. जो smaller party हैं, छोटी पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिनको क्या है, इलेक्शन विन करने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको हमेशा वो क्या करते हैं, या तो विड्रॉ कर लेते हैं या उनको बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है. And very often election offer little choice of ordinary citizen, for both major parties are quite similar to each other in policies and practice. जो different political parties हैं use different slogan to win the election, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ है, जो उनकी जो प्रैक्टिस हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी लॉज हैं, उनमें क्या होते हैं, थोड़े लिटिल उनमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल हैं उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस पार्टी को क्या करें, किस पार्टी को वोट दें, क्योंकि उनमें जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो टोटली क्या होती है, सेम ही होती हैं, और जो ऑर्डिनरी सिटीज़न उनको नहीं पता तो कि क्या उनके लिए काफ़ी बेटर है. तो वो क्या है, कई बार प्रेशर में आके क्या है, गलत लोगों को भी क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. तो स्टूडेंट, दीज आर सम चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सो स्टूडेंट, tomorrow we will discuss about complete chapter and we will discuss about summary lecture, okay, and you will revise chapter, okay. And today your homework solution, what do you know about election commission and what is its role in the election? Firstly, you know the entire process of election in our country is conducted, controlled and supervised by an independent body called the election commission. And you know there are 3 members in election commission. First is chief election commissioner and other is 2 election commission member.
And the role EC takes decision on every aspect to conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of result, and it implement the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhances its chances to win election or to transfer some government officials. And fourth, when on election duty, government officers work under the control of EC and not the government. And question number second, what is model code of conduct in electoral system? Mention its chief elements. Answer, it is a set of norms as prescribed by the election commission to be followed by all political party in our country for contesting election or during campaign. And the law of code of conduct, use any place of worship for election propaganda. B, use government vehicle, aircraft and official for elections. And third, once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision. And question number third, who appoints the chief election commissioner? Answer is the President of India. Mention any 3 allegations about unfair practice in election reported in newspaper and television. Answer first, inclusion of false name and exclusion of genuine name in the voter list. And second, misuse of government facilities and officials by ruling party. Excessive use of money by rich candidate and big parties. And fourth, intimidation of voters and rigging on the polling day. Question fifth, what is the time period of campaigning? In our country, such campaigns take place for a 2 weeks period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling. Question number 6, Save Democracy slogan was given by which political party? Answer is Janata Party in 1977. Okay student, and today your homework, distinguishing between general election and by-election. Write any 3 differences between general and by-election. And question number second, one final test of the free and fairness of election lies in the outcome of itself. Justify the statement with the help of the outcome of India election. And third, what are the challenges to free and fair election in India? And question number fourth, how far is it good to have political competition? Give reason. And question number fifth, what is secret ballot system? Give 3 reasons why secret ballot system is good. And question number 6, what do you mean by turnout? And student, all student done in your fair notebook and write your proper name, roll number, section, and properly write your all questions and answers in good handwriting. Okay, thank you.